بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نظام الدین عرف جامی نے زندگی میں دو عورتوں سے ہی محبت کی تھی۔ ایک تو اس کی ماں تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور دوسری اس کی بیوی ریشمہ جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی ریشمہ سے گزشتہ برس ہوئی تھی۔ وہ 22-23 سال کی لڑکی تھی اور جامی کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ دریا کے کنارے سے چکنی مٹی گدے پر لاد کر کمہاروں کو بیچتا، مگر اس کے کام میں زیادہ آمدنی نہیں تھی، بس گزارا ہی ہوتا تھا۔ ریشمہ سے جامی کی شادی کی داستان بھی عجیب ہے۔ ریشمہ کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، مگر عین نکاح کے وقت لڑکے والوں نے جہیز میں ٹریکٹر کا مطالبہ کر دیا۔ ریشمہ کے والد بہت غریب تھے اور یہ مطالبہ پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ریشمہ کے بوڑھے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں بارات واپس نہ چلی جائے، اپنی پگڑی اتار کر دولہا کے باپ کے قدموں میں رکھ دی، مگر ہرس اور ہوس میں مبتلا لوگ ایسی باتوں کی کب پرواہ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے۔ جامی پنڈال میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں غصے سے کھول رہا تھا۔ جب اس نے ریشمہ کے باپ کو دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اٹھا اور لوگوں کے قریب آیا۔ اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا، کسی زمانے میں وہ پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے لڑکے کے باپ سے کہا، بابا کیوں کسی کی عزت خراب کرتے ہو؟ یہ غریب لوگ ہیں، تمہیں ٹریکٹر کہاں سے دیں گے؟ جامی کی یہ مداخلت دولہا کو بہت بری لگی اور وہ سہرے کے پیچھے سے بولا کہ دور ہٹو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ بات بڑھ نہ جائے لڑکی کے باپ سے کہا کہ زیادہ تماشے کی ضرورت نہیں، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو بات ختم، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں شادی نہیں کرنی۔ مطالبہ تو تھا ہی ایسا کہ کسی حال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے والے واپس چلے گئے۔ پل بھر میں شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ لڑکی کی ماں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کا باپ ایک کونے میں بیٹھا رونے لگا۔ لڑکے والوں کے ساتھ آئے ہوئے مہمان چلے گئے، مگر وہ مہمان جو لڑکی والوں کی طرف سے تھے وہ موجود تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر جامی کے خون نے جوش مارا اور بلند آواز میں ریشمہ کے باپ سے بولا، بابا تم فکر مت کرو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، ابھی اور اسی وقت۔ اس کے اس اعلان نے وہاں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کی حیرانی ختم ہوئی تو اس کی جگہ خوشی نے لے لی۔ جامی گاؤں کا ایک محنتی اور شریف نوجوان تھا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، نہ برے فعل میں تھا۔ وہ اسی گاؤں میں جوان ہوا، یہیں بڑا ہوا، اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان ہے۔ اس کے پاس ذاتی گھر تھا اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر وہ کاشتکاری کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اس کی بات سن کر چند بزرگ جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیے۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہو گیا۔ جامی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کے بر وقت فیصلے نے لڑکی والوں کو پریشانی سے بچا لیا۔ جامی کے بچپن کے دوستوں کو جب اس شادی کی اطلاع ملی تو وہ بھی بھاگے بھاگے نکاح کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی لڑکی کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کا حل ہو جانے پر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے بھی سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ بوڑھے اور بوڑھیاں تو جامی کو دعائیں دے رہے تھے، باقی دوسرے لوگ اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اس فیصلے کے لیے دل کھول کر تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہاں پر موجود مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ریشمہ کی رخصتی ہوئی۔ ایک سجے سجائے تانگے میں جامی دلہن کو گھر لے آیا۔ اس کا گھر پھیلا ہوا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کوئی چیز قرینے سے رکھی نظر نہ آتی تھی۔ وہ ریشمہ کو لے کر اندر آیا اور بولا، ریشمہ تو بھی سوچے گی کہ جامی کیسا ہے، گھر کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ریشمہ نے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے گھر کی حالت کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس نے جامی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھ پر لگائے اور روتے ہوئے بولی، جامی بس ایک ہی بات سوچ رہی ہوں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تو جیسا مرد ملا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہم کتنے غریب لوگ ہیں، ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا اچھا ہے، تیرے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں۔ اگر تو اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا تو میری ماں صدمے سے آج ہی مر جاتی۔ جامی میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ جامی نے ریشمہ سے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم اچھی لڑکی ہو، تم اس گھر کے قابل نہیں تھی،
सच पूछो तो मैं तुझे पहले ही पसंद करता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा रिश्ता पहले हो चुका था तो मैं खामोश रहा। मैंने चचा से इसके मुतालिक कोई बात ना की, लेकिन निकाह के दिन उन लोगों के इस मुतालबे ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग इतने लालची होंगे। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया कि चचा ने कैसे लोगों में तुम्हारा रिश्ता दिया। अगर आगाज में ही वो ऐसे मुतालबात कर रहे हैं तो आगे और मुतालबात जरूर करेंगे और किसी तरह भी वो तुम्हारे वालिद को परेशान करते रहेंगे। जामी रेशमा को पहले से ही जानता था, लेकिन शादी के बाद रेशमा का अखलाक देखकर जामी को अपने ऊपर रशक होने लगा कि इसकी बीवी सोच से भी ज्यादा अच्छी निकली, जबकि रेशमा के लिए भी जामी किसी फरिश्ते से कम नहीं था। इससे पहले रेशमा किसी भी चीज की ख्वाहिश का इजहार करती, इसके मुंह से निकलने से पहले ख्वाहिश पूरी कर देता। फिर बाद में जामी ने दोबारा पहलवानी शुरू कर दी। लोग हैरान हुए कि जामी के अंदर का पहलवान अचानक कैसे जाग उठा। जब इन्होंने जामी से पूछा तो जामी ने कहा कि बात दरअसल ये है कि अच्छी और नेक बीवी आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती, वो आपको खुश रखती है। रेशम की जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब भी पहलवानी कर सकता हूँ। मैंने पहलवानी क्यों छोड़ दी? मैं अब भी बड़े बड़े पहलवानों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। हुआ भी ऐसा। जामी ने काफी मेलों में हिस्सा लिया जहाँ कुश्ती के मुकाबले होते थे। इसने बड़े बड़े पहलवानों को मात दी। जामी का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। जामी के यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुई। ये एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जिसकी हर शख्स तमन्ना कर सकता है। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान आने वाले वक्त से नावाकिफ होता है। इंसान को नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में क्या होना है। बस हर हाल में इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से डरे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। एक दिन जामी जुमा की नमाज पढ़ने गया तो खुतबे में मौलवी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में इसका रिज़्क लिखा हुआ है। अगर आपको इस बात की खुशफहमी है कि आप घर के सरबराह हैं और आपकी वजह से घर का सरकट चल रहा है और आपके बच्चे और बीवी पल रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। अपने खानदान वालों के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें, लेकिन इस गलत फहमी में ना रहें कि आपकी वजह से वो रोटी खा रहे हैं, रिज़्क हासिल कर रहे हैं। जामी ने मौलवी साहब के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो दिल में सोचने लगा कि ये मौलवी साहब ने बड़ी ही अजीब बात की है। मैं यहाँ मेहनत मुशक्कत करता हूँ, पहलवानी करके 4 पैसे घर ले आता हूँ तो घर का सरकट चलता है। अगर मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ तो मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? मैं मौलवी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मेरा तो दिल मानता ही नहीं कि मौलवी साहब सच बात कह रहे हैं। दूसरे दिन जामी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो सुबह देर से उठा। इसकी बीवी हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा शौहर सुबह सुबह उठता है, काम करता है, लेकिन आज सोया हुआ है। इसने अपने शौहर को नींद से बेदार किया तो जामी ने बीवी से कहा कि मुझे सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बीवी ने जामी के माथे पर हाथ रखा कि शायद इसे बुखार हो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। इसे नहीं मालूम था कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सारा दिन सोता रहता, फिर थोड़ी देर उठकर बच्चों के साथ खेलता और यूं शाम हो जाती। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे तो जामी की बीवी ने इसे कहा कि क्या मामला है, आज तीसरा दिन है, मैं देख रही हूँ कि तुम ना घर से बाहर जाते हो, ना कोई काम करते हो, ना ही मेलों में शिरकत करते हो। तुमने अपनी पहलवानी की मशक भी छोड़ दी। आखिर आपको हुआ क्या है? आटे की बोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अगर तू यूं ही घर में बैठे रहे तो हमारा क्या बनेगा? कुछ अकल के नाखून लो। जामी ने अपनी बीवी से कुछ न कहा और खामोश रहा और कहा कि कल मैं जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चौथे दिन जामी अपनी आदत के मुताबिक वैसे ही सोया रहा तो बीवी को गुस्सा आया। रेशमा ने एक पानी की ठंडी बाल्टी इसके ऊपर डाली। जामी को गुस्सा आया। इसके दिल में आया कि एक बाला उठाऊं और बीवी को मार दूं, लेकिन इसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और रेशमा को कुछ न कहा। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया, लेकिन रेशमा नहीं जानती थी कि जामी कहाँ जाने वाला है। जामी ने दिल में सोचा कि घर में मेरी बीवी मुझे ऐसे तो रहने देगी नहीं और मैं घर में ऐसे नहीं रह सकता। बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से दूर कहीं चले जाना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि मौलवी साहब की बात कैसे दुरुस्त साबित होती है और मेरे घर वाले मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे। मुनीरा अपने गांव से दूर दरिया के उस पार जंगल में जा पहुंचा। वहां जंगल में इसने देखा कि
एक फकीर बाबा झोपड़ी में अकेला है। जामी अपने गांव से दूर दरिया के उस पार जंगल में जा पहुंचा। वहां जंगल में इसने देखा कि एक फकीर बाबा झोपड़ी में अकेला है। जामी झोपड़ी में दाखिल हुआ, बाबा को सलाम किया और कहा कि बाबा जी, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं मुसाफिर हूँ और कुछ अरसा यहाँ रहना चाहता हूँ, बाद में वापस चला जाऊंगा। बाबा जी ने इसे खुश आमदीद कहा और कहा कि तुम जितना अरसा रहना चाहो यहाँ रह सकते हो। दूसरे दिन बीवी ने जब देखा कि इसका शौहर रात को घर वापस न आया तो परेशान हुई। इसने अपने बाप को बताया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए जामी को ढूंढने लगे। जामी ना मिला तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जामी के तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा गया, मगर किसी ने कुछ न बताया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद इन्होंने गुमशुदगी का अखबार में इश्तिहार दिया। जामी की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर अखबार में लगी थी। साथ गुमशुदगी का पता बताया गया। हर गुजर जाने वाले दिन के साथ रेशमा परेशान होती गई। वो इस बात पर पछताने लगी कि मुझे अपने शौहर के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो इस पर पानी फेंका था तो मेरी वजह से वो खफा हो गया और घर छोड़कर कहीं चला गया। अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गया, कहाँ है, इस बात का कोई पता नहीं। वो दिन रात अपने शौहर को याद करती और रोती रहती, मगर वो ये भी सोचती कि जामी पहलवान है, इसमें सब्र और हौसला पाया जाता है। मैं हूं कि इतनी छोटी सी बात पर वो घर छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले भी मैंने शौहर से कई बार मजाक किया और इस पर पानी फेंका, मगर उसने बुरा ना माना। वो जानती ना थी कि जामी के दिमाग में क्या चल रहा था और सीधा घर छोड़कर चला गया। इसे इस बात का कुछ पता नहीं था। जब कई माह गुजर गए तो जामी की बीवी मायूस हो गई कि अब इसका शौहर वापस नहीं आएगा। शायद जामी को किसी ने अगवा किया और इसके बाद जान से ही मार दिया। लोगों ने जामी की बीवी के साथ बहुत ताउन किया। सब लोगों ने दिल खोलकर इसकी मदद की। गंदम की कटाई के मौके पर हर घर से एक एक बोरी इसकी बीवी के घर मदद के लिए रख दी गई। रेशम के घर में बोरियों का अंबार लग गया। घर में मजीद गंदम की बोरियां रखने की जगह नहीं थी। चौधरी साहब ने जामी के बच्चों की तालीम का जिम्मा लिया। इन दोनों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाया। रेशमा ने चौधरी साहब को दुआएं दी, जिसने इन यतीमों का ख्याल किया, इनके मुस्तकबल के बारे में सोचा। रेशम को जामी की गुमशुदगी का अफसोस था, लेकिन गांव वालों की मदद और खलूस देखकर वो हैरान थी। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे गांव में इतने मुखलिस और अच्छे लोग पाए जाते हैं और मुश्किल वक्त में अपनों और परायों का पता चल जाता है। मुश्किल वक्त में गांव वालों ने जामी की बीवी को तन्हा ना छोड़ा और इसकी खूब मदद की। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। जामी को अचानक बच्चों की याद आई। इसे रेशम की याद सताने लगी। इसने बाबा जी से इजाजत ली और घर की तरफ भागा। इसके दिल में कई वसवसे आ रहे थे कि मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या बना होगा, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। इन्हीं सोचों को दिल में लिए वो घर की तरफ भागे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ तो लोग जामी को देखकर हैरान हुए और इसे भूत समझकर दूर भागने लगे। जामी गांव के हर फर्द को यकीन दिला रहा था, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो अपने जाने की वजह बता रहा था, लेकिन लोग इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और इसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। किसी ने जामी की आमद की खबर रेशमा को पहले ही दे दी और ये इतला दी कि आपके शौहर का भूत वापस आ गया। ये सुनकर रेशमा खौफजदा हो गई। जामी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो रेशमा ने सुराख से देखा। जब इसे पता चला कि बाहरी दरवाजे पर इसके शौहर का भूत खड़ा है, इसने अपने बच्चों को और खुद को कमरे में बंद कर दिया। जामी दीवार फलांग कर घर के सहन में दाखिल हुआ और बीवी से कहने लगा कि दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा नहीं था। मगर इसकी बीवी ने दरवाजा ना खोला। जामी चौंके पहलवान था। इसने जोरदार धक्का दिया और दरवाजे को तोड़ डाला। फिर इसने अपनी बीवी को पकड़कर कहा कि मुझसे दूर मत भागो, मैं जिंदा हूँ। बच्चे इस वक्त स्कूल गए हुए थे। इसने रेशमा को सारी कहानी बताई कि इस वजह से वो घर से चला गया। यह सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने शौहर को कहा कि तुम पागल हो चुके हो, कोई नॉर्मल शख्स यूं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। जामी ने अपनी बीवी से मुआफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर रेशमा ने इसे मुआफ़ नहीं किया। जामी ने देखा कि घर में गंदम का ढेर लगा हुआ था। सहन की कच्ची दीवारें अब पक्की हो चुकी थी। घर का सहन भी पक्का था। नेज हर एंगल से पहले से इसका घर बेहतर मालूम होता था। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से वापस आए तो जामी इनकी वर्दी और बैग देखकर हैरान हो गया।
بچوں کے جوتے اور کپڑے ایسے تھے کہ جامی دیکھتا ہی رہ گیا۔ جامی نے دل میں کہا کہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں غلط تھا، مجھے یوں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بچے اب اس کے قریب نہیں آ رہے تھے اور بیوی بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ یہ چیزیں جامی کو بہت پریشان کر رہی تھی اور وہ گھر میں اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب بچے اسکول گئے تو جامی نے رو رو کر ریشما سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اس نے معاف نہ کیا اور دل سے قبول نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ ریشما مسلسل خاموش رہی اور اس کے ساتھ نظریں نہ ملا سکی تو جامی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مگر اس دفعہ میں تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ حالانکہ جامی مذاق کر رہا تھا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر اب وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے روک لیا اس احسان کے بدلے میں جو جامی نے اس پر کیا تھا۔ جب اسے کچھ لوگ ٹھکرا کر چلے گئے تھے اور جامی نے اسے اپنا لیا تھا، کچھ دنوں بعد بچے بھی جامی سے مانوس ہو گئے اور جامی نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔